بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں عائشہ انصاری۔ ناظرین، رابطے کام آئے نہ یقین دہانیاں، نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم شائقین کرکٹ کے ارمانوں کا خون کرتے ہوئے اسلام آباد سے روانہ ہو گئی۔ کیوی اسکواڈ کو لینے کے لیے خصوصی پرواز 1 گھنٹے سے زائد تاخیر کے ساتھ اسلام آباد پہنچی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیکیورٹی ہیڈ کرنل ریٹائرڈ آصف بٹ نے کیویز کو الوداع کیا۔ ٹیم اسلام آباد سے دبئی اور پھر نیوزی لینڈ پہنچے گی۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے نیوزی لینڈ کے رویے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کھلاڑی کارکردگی دکھا کر غصہ نکالیں، پہلے بھی پاکستان کرکٹ مشکلات سے گزر چکی ہے، اب بھی مشکل سے نکل جائیں گے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا، پاکستان میں کرکٹ کی بحالی بھارت کو ہضم نہیں ہوئی۔ پوری دنیا نے یقین دلایا مگر نیوزی لینڈ کا فیصلہ نہ بدل سکا۔ کرکٹ کے شوقین لاکھوں پاکستانیوں کا دل ٹوٹ گیا۔ دستانے پہنے ہاتھ کام دکھا گئے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کھیلنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ پرامن پاکستان میں سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کیوی ٹیم واپس چل دی۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم خصوصی طیارے پر براستہ دبئی واپس روانہ۔ ٹیم کو لینے کے لیے آنے والا طیارہ 1 گھنٹہ تاخیر سے اسلام آباد پہنچا۔ مہمان ٹیم کے کھلاڑی اور آفیشلز 4 بجے ہی ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں، بھارت کو پاکستان کی کرکٹ ہضم نہیں ہوئی۔ پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے۔ ہندوستان میں کووڈ کی وجہ سے وہاں کوئی کرکٹ نہیں ہو رہی اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پڑوس میں ایک امیج بلڈ اپ کرکٹ ڈپلومیسی میں پاکستان کا امیج ہو۔ ہم نے پاکستان میں آپ دیکھیں نیٹو فورسز کو، ڈپلومیٹس کو، ہزاروں کی تعداد میں IMF ورلڈ بینک کے لوگوں کو یہاں اٹھوں میں کھڑایا اور بعض ان کے موجودگی میں بھی ٹھہرے ہوئے اور یہ ایک بلا وجہ ہم نے ان سے کہا آپ کچھ بتائیں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی تھریٹ کا ریکارڈ نہیں ہے، کوئی نہیں۔ ہمیں پیچھے سے کہا گیا واپس آ گئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کریں ہم گراؤنڈ خالی کرا دیتے، تو یہ بھی قبول نہیں تھا۔ تو بتائیں اگر انہوں نے ذہن ہی بنا لیا تھا کہ انہوں نے واپس جانا ہے اور یہ بہت بھاری تھا۔ کل دنیا میں آپ کو پتا ساری دنیا میں یہی خبر پاکستان سے وہ چلے گئے ہیں۔ یہ سارا ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان ایک روزہ سیریز گزشتہ روز شروع ہونا تھی۔ کیوی آفیشلز نے سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر اچانک دورہ ختم کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کیوی وزیر اعظم سے رابطہ کیا تھا۔ لیبر پارٹی فلتھم اینڈ بیسٹن کی جانب سے فنڈ ریزنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہانسلو باروں سے کاؤنسلرز اور ممبر آف پارلیمنٹ سمیت علاقے بھر سے سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء نے خصوصی طور پر پاکستان کے ریڈ لسٹ سے نکلنے پر خوشی کا اظہار کیا اور مبارکباد دی۔ مزید تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ ہانسلو میں مقامی جم خانہ کے ہال میں منعقد لیبر پارٹی فینتھم اینڈ ہیسٹن کی جانب سے فنڈ ریزنگ اور سماجی و سیاسی رابطوں کے فروغ کے لیے خوبصورت تقریب سجائی گئی، جس میں ممبر آف پارلیمنٹ سیما ملہوترا، ممبر آف پارلیمنٹ روتھ کیڈبری، ممبر آف پارلیمنٹ اسٹیو ریڈ، کونسلر سمیہ چودھری، میئر ہانسلو کونسلر ڈپٹی میئر ہینا میر اور کونسلرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں آئندہ لوکل الیکشن میں لیبر پارٹی کی کامیابی کے لیے بھرپور تیاریوں کا عزم ظاہر کیا گیا۔ اس موقع پر ایم پی سیما ملہوترا اور ایم پی اسٹیو ریڈ نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں 18 ماہ سے زائد عرصہ تک سماجی اور سیاسی رابطوں کا منعقد نہ ہونا بڑی تکلیف دہ بات تھی، مگر اب زندگی دوبارہ معمول پر آنے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیبر پارٹی کونسل کی سطح پر عوامی رابطوں کی تقریب منعقد کروا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ سیاسی اکھاڑا سجایا جائے گا تاکہ برطانیہ بھر میں سیاسی تبدیلی لائی جا سکے۔ We are raising funds for our local election campaign because we need to be in a strong position to be able to fight the local election, to be fighting for the needs of local people. We have a government that cut the funding for our local services here, our social care, our youth provision, cut by over 60% over 10 years. And what we're saying, if we want to see an inclusive recovery, we want to see support for tackling antisocial behaviour, we want to see that investment in young people, we need a local council that's going to deliver that. We're raising money for the council elections next year because we want to get our Labour colleagues elected to Hounslow Council so they can keep doing the things that will make life better for people here, building council homes, making sure older people have the support they need to live their life with dignity and with respect. And
protection for families with children. Come to the Labour Party fundraiser organised by my good friend and colleague Seema Malhotra MP for Feltham and Heston, and it's a lovely evening. We're raising funds, but this is about friendship and coming together after so long where we haven't been able to see each other. We have invited all the members. It's a fundraising event for us, and I think it's really nice to see so many people out and meeting them as well, because I think it was important for us to do some kind of gathering after COVID. People have been sitting indoors and everyone is really happy to be here. That is me is 56 Mayor of London Borough of Hounslow, Councillor Vishnu Gurung, and also we got the Commerce and Chambers, the President of the Commerce and Chamber Hounslow, Sardarji, he also attended. So this party is one of the unique party which we can make our member annually get-togethers. Well, we've got an election in 7 months' time, on the 5th of May 2022, and we need to get together, as we've got together during the COVID, and everyone's worked so well as communities together, supported each other, and now the Labour community needs to come together once again to gear ourselves up for the election in May. इस मौके पर शुरा ने लॉकडाउन के बाद इलेक्शन मुहिम की तैयारियों और समाजी राब्तों की बहाली पर खुशी का इजहार किया। तकरीब में पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने पर भी खुशी का इजहार किया गया। लेबर पार्टी की जानिब से की जाने वाली कोशिशों का जिक्र करते हुए MP रूथ कैडबरी काउंसलर दीगर काउंसलर्स ने बरतानवी पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी और कहा कि लोग कई माह से पाकिस्तान और बरतानिया में फंसे हुए थे। कारोबारी मामलात भी तातुल का शिकार थे। As you know, many of us wrote to the UK government concerned that the fact that Pakistan was still on the red list for travel that meant so much difficulties for so many local families. So really pleased that the government have listened to us, and we've heard today that Pakistan is no longer on the red list for travel to and from the UK, which is great news. The government's finally taken Pakistan off the red list, because there's an awful lot of people who are stuck there and have been for a long time and are wanting to come back. I've got constituents who went to Pakistan for medical treatment, for instance, and then they find that they can't get home easily. So it's a big relief that the vaccination program is working now, and the risks, thank goodness, are reducing and people can start to come back again. And with the pandemic ending now, we're starting to look at politics in the world after the pandemic. Pakistan is out of the red list. That's going to make a great difference. So families can get together again, and that's really important. शुरा की तफरीह के लिए मारूफ गुलकार राजा काशिफ और रुबायात ने मुख्तलिफ ज़बानों में गीत गाकर हाज़रीन को खूब महसूस किया। तकरीब में फंड रेजिंग की अपील पर ज़ाहिरीन ने दिल खोलकर अतियात दिए। इस मौके पर अपोजिशन लीडर कीयर स्टार्मर के दस्तखत वाली अशिया को नीलाम करके भी रकूम जमा की गईं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान के बरतानिया की सफरी पाबंदियों से बाहर निकलना एक बड़ी कामयाबी है। पिछले 6 माह से बरतानिया और पाकिस्तान में ओवरसीज़ कश्मीरी और पाकिस्तानी रेड लिस्ट का शिकार थे। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बाहर निकलने के लिए बरतानवी ऐवानों में गूंजने वाली एक आवाज़ MP यास्मीन कुरैशी की भी थी। मैनचेस्टर में एक तकरीब के दौरान उन्होंने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उसका अहवाल एतजाज़ आसिम से जानते हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की कोशिशें रंग ले आईं और पाकिस्तान को बरतानिया ने कोरोना की रेड लिस्ट से बाहर निकाल दिया। बरतानवी वानों में इस हवाले से आवाज़ बुलंद करने वाली एक शख्सियत MP यास्मीन कुरैशी भी थी। मैनचेस्टर में एक तकरीब में शिरकत के बाद MP यास्मीन कुरैशी ने इस खुशखबरी के हवाले से 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की और उनका कहना था, पाकिस्तान का बरतानिया की सफरी पाबंदियों से बाहर निकलना एक बड़ी कामयाबी है। पिछले 6 माह से बरतानिया और पाकिस्तान में ओवरसीज कश्मीरी और पाकिस्तानी रेड लिस्ट का शिकार थे। उम्मीद है ओवरसीज बरतानिया की सफरी हदायत को मद्देनजर रखते हुए अपने बैरून मुल्क सफर को इख्तियार करेंगे। जब अप्रैल में पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया था तो मैंने इमीडिएटली अपने मिनिस्टर से पूछा था कि भाई क्यों, क्या वजह है, और हमें कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं थी मिली गई। लेकिन हमने फिर भी कंटिन्यूसली कैंपेन करते रहे, मिनिस्टर से बात करते रहे, पार्लियामेंट में ये मसला उठाते रहे। देन मैंने काफ़ी लेटर्स भी लिखे हैं एंड इन द एंड जो सेक्रेटरी स्टेट हाउस है साजिद जावेद ने मुझे टेलीफोन किया और कहा कि ये वजह है। मैंने कहा तो ये तो इश्यूज़ आपने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं एड्रेस किए। तो दैन वाज अ काउंटर पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बात करना, यहाँ के जो चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर सुल्तान और असद उमर जो कि प्लानिंग मिनिस्टर है, फिर जो हाई कमिश्नर से यहाँ मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ थे
उनसे गुफ्तगू डिस्कशन करवाई लास्ट वीक, तो उसके बाद ऑब्वियसली ये अच्छा रिजल्ट आ गया। बोल्टन में रेस्टोरेंट का इफ्तिताह करने के बाद यास्मीन कुरैशी ने मुकामी ओवरसीज पाकिस्तानियों से खसूसी बातचीत की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस मौका पर उनकी कोशिशों को सराहा। इत्तेजाद आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। साबिक MP फैसल रशीद और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाले जाने पर खुशी का इजहार किया। आइए देखते हैं। ये खबर तो बहुत ही खुशाइंद है, क्योंकि बहुत सी फैमिली जो यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए बैठी हुई हैं और कुछ फैमिली वहाँ जा चुकी हैं और वापस आने के लिए बैठी हुई थी। तो ये बड़ी खुशी की खबर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके रुफ़क़ा ने जो कोशिशें की, आज वो रंग ले आई हैं और बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को मुकम्मल तरीके से रेड लिस्ट से आज़ाद कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ। आज पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल गया है और आप लोग आराम से अब ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी मिल सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान को जब इंडिया को निकाला गया था उसी वक्त इसको भी रेड लिस्ट से निकाल देना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। वॉल्सल में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी रेड लिस्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए MP नाज शाह और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कम्युनिटी रहनुमाओं और पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इस इशू के हल के लिए मिसाली किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन की कोशिशें भी काबिल तहसीन हैं। देखें, आज 6 महीने के बाद तकरीबन पाकिस्तान को रेड लिस्ट से उतारा गया है। देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन ये जो फैसला किया आज इंसाफ हुआ है। हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ भी, हमारी जितने भी ट्रैवल्स के लिए जाते हैं पाकिस्तान, तो मैं यही कहूँगी कि देखें, यास्मीन कुरैशी MP जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की चेयरपर्सन है, खास करके डॉक्टर क्रिस्टियन टेलर जो हमारे ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, और जिन्होंने ये कोशिश की है, जिन लोगों ने, हमारे जो आवाम है जिन्होंने अपने MPओं को खत लिखा, उनकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मिलकर हमने ये प्रेशर डाला है और ब्रिटेन ने ये सही फैसला आज किया। हुकूमत बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए थे रेड लिस्ट की वजह से, वो अब आसानी से ट्रैवल करके वापस पाकिस्तान से UK में आ सकते हैं। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, अब वो भी पाकिस्तान आसानी से जा सकते हैं। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालकर बहुत अच्छा फैसला किया है। तमाम पाकिस्तानी इस फैसले से बहुत खुश हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल आया है और हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए काफ़ी आसानी है। अब वो आराम से पाकिस्तान भी जा सकते हैं और जो हमारे बहन भाई पाकिस्तान में वहाँ रुके थे क्योंकि पाबंदी की वजह से, अब वो भी वापस आराम से आ सकते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बरतानिया ने पाकिस्तान को जो रेड लिस्ट से बाहर निकाला है और अब सफरी सहूलतों में काफ़ी आसानी पैदा की है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक और बड़ा जुल्म किया है वो ये है कि 1 अक्टूबर से जो आदमी यहाँ UK से जाएगा उसको 2 वैक्सीनें अगर ना लगी हो तो वो पाकिस्तान नहीं जा सकेगा। और यहाँ अगर पाकिस्तान से अगर कोई वापस आना चाहता है बरतानिया में, तो अगर उसको 2 वैक्सीनें ना लगी हों तो वो भी नहीं आ सकेगा, सफ़र नहीं कर सकेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ये 2 वैक्सीनों का लाजमी नहीं करार देना चाहिए था। ये तो सेंस बनती है कि बरतानिया से अगर कोई जा रहा है तो उसको 2 वैक्सीनें हो तो ये प्रोटेक्शन हो सकती है पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को ये इक़दामात फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। जो पाकिस्तानी और कश्मीरियों को बड़ा मुश्किल मरहला था रेड लिस्ट में रखे जाने का, तो अब चूँकि हुकूमत ने ये फैसला किया कि उन्होंने हमको रेड लिस्ट से निकाल दिया, तो मैं समझाऊँ ये ठंडी हवा का झोंका है हमको उन पाकिस्तानी के लिए जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उसने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला। इस इकदाम से कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस वक्त बरतानिया में तकरीबन 10 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने पर हमारे कई मामलात जो है वो अब दुरुस्त समत की तरफ जाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का खेल शुरू होने से चंद मिनट पहले मैच खेलने से इनकार। बरतानिया में मुख्तलिफ क्लब से वाबस्ता खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के फैसले पर शदीद तनकीद की है। बर्मिंघम में क्रिकेट मैच के बाद क्रिकेटर्स ने इस अमल को पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश करार दे दिया। तफसीलात खाविर राजा की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले न्यूजीलैंड की टीम के इनकार ने ऐसे शरपसंद अनासर के मनफी इरादों को बेनकाब कर दिया जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली नहीं चाहते। न्यूजीलैंड टीम के इस फैसले पर बरतानिया भर में मौजूद क्रिकेट लवर्स ने मायूसी का इजहार किया है। बर्मिंघम के मुकामी ग्राउंड में मुख्तलिफ क्लबों के दरमियान होने वाले मैचेस के मौके पर खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के इस इकदाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। After Afghanistan, Pakistan was a safe passage for the full world. पूरी दुनिया की फौजें टूरिस्ट और all the overseas बंदे जो अफगानिस्तान से थे, they were using as passage from Pakistan and getting away. And suddenly how, I can't understand a New Zealand kid could turn around and say that it's not safe. If that wasn't safe for the cricket, how could it be safe for the full world to travel? So I think it's more to do with the trio that we talk about and the political sense of and the cricket boards. And everything run BCCI. सैड न्यूज़ हमें मिली कि न्यूजीलैंड जो है वो सिक्योरिटी रीज़न के लिए सीरीज़ कंटिन्यू कर सकता। हमें एज ए क्रिकेट शायकीन बहुत सदमा हुआ, ज़ाहिर बात है, और दुख हुआ इस चीज़ का कि चलो एक अच्छी सीरीज़ थी वो देखने को मिल जाती, लेकिन अभी ये है कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोग क्रिकेट मैच की तो कोई बात नहीं है, चलो अब हमारा कंट्री जो है वो 10 साल पीछे चला गया सिर्फ इस वजह से। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ब्लैक डे था। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड ने एक सोची समझी साजिश के तहत किया कि जो क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही थी पिछले 10 सालों से, सारा एफर्ट वो जो आई थिंक ये IPL की वजह से उन्होंने किया मिलजुल के। क्रिकेटर्स ने न्यूजीलैंड को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बगैर किसी माकूल वजह के इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बनकर पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की। देखिए जो कुछ भी हो रहा है राइट, हमारे पाकिस्तान मुल्क के बहुत गलत हो रहा है। इतने जिन्होंने टिकटें भी ले ली, इतनी सिक्योरिटी थी, इतने दिन हो गए न्यूजीलैंड टीम को वहाँ पे, तो उनको क्या ज़रूरत है भी पुल आउट करने की, राइट। ये दूसरे मुल्कों का हाथ है। देखें पाकिस्तान वो इंटेलिजेंस क्यों नहीं शेयर कर रहे, राइट। अगर कुछ ऐसा होता तो वो इंटेलिजेंस शेयर करें, राइट। भाजी जो कल होया न्यूजीलैंड पाकिस्तान बारे गलत होया। एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए क्रिकेट फैन असी वेट कर रहे थे कि कदों होए सीरीज़ देखी असी ना न्यूजीलैंड गुड टीम आ पाकिस्तान गुड टीम आ, बट जो होया गलत है। बाकी भाजी पिछली गल जां वो थोड़े ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। जो न्यूजीलैंड की टीम कल पुल ऑफ हुई है पाकिस्तान टूर से, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है और ये सारा इंडिया का हाथ है पीछे। लास्ट मिनट में इतनी सिक्योरिटी उनको दी थी, प्राइम मिनिस्टर वाली सिक्योरिटी दी हुई थी, तो ये सब इंडिया करवा रहा है। खिलाड़ियों का ये भी कहना था कि न्यूजीलैंड में गुज़श्ता दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेलने की पेशकश की थी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट क्लब के इस बेढंगे और गैर माकूल इनकार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में मजबूत बुनियादों पर उठाए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत एक बुरी खबर है और न्यूजीलैंड टीम एक अच्छी टीम है। मतलब हम लोग उनसे इस तरह की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब न्यूजीलैंड में इंसिडेंट हुआ था तो ज़ाहिर एज अ कॉम और एज अ स्पोर्ट्समैन हम सब उनको बैकअप कर रहे थे। पाकिस्तान में खेलों की बहाली और सियाहत का फ़रोग यकीनन दुश्मनान पाकिस्तान के लिए बेचैनी का बायस है और पाकिस्तान के अमन और तरक्की को रोकने के लिए दुश्मन हमेशा ऐसे इकदाम करता रहेगा, मगर इस हवाले से पाकिस्तान की तमाम जमातों को मिलकर ठोस इकदाम उठाने होंगे। न्यूजीलैंड के इस इकदाम पर मुख्तलिफ क्लब से वाबस्ता खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट का यही कहना था कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। ICC को इस हवाले से न सिर्फ गैर जानबदार इंक्वायरी करनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में क्रिकेट की दोबारा बहाली के लिए भी इकदाम उठाए जाएं। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आयरलैंड में पाकिस्तानी आर्टिस्ट सोबिया साद के ट्रक आर्ट की सालाना कल्चरल नाइट में नुमाइश हुई जिसे शायकीन ने बेहद सराहा। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से सजी गाड़ी शुरका की तवज्जो का मरकज बनी रही। शहरियों ने पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की खूब तारीफ की। मजीद तफसीलात फैसल मिर्जा की रिपोर्ट में। आयरलैंड के शहर डबलिन में भी पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की धूम। पाकिस्तानी फनकारा सोबिया साद की गाड़ी अपनी सजधज की वजह से शायकीन की तवज्जो का मरकज बनी रही। दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी अपने मुल्क से मोहब्बत और अकीदत का इजहार मुख्तलिफ तरीकों से करते रहते हैं, लेकिन आयरलैंड के खूबसूरत शहर क्लिकनी में रहने वाली सोबिया साद ने अपनी गाड़ी को पाकिस्तानी ट्रक की मानंद मुख्तलिफ रंगों से तैयार करके सबको हैरत में डाल दिया। इस गाड़ी को तैयार करने में उन्हें 3 माह का वक्त लगा, जिसमें एक जानिब पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर को दिखाया गया है और इस पर बड़े ही दिल नशीन अल्फाज लिखे गए हैं और दूसरी जानिब आयरिश कल्चर और यहाँ के रंगों और अल्फाज को जगह दी गई है। सोबिया साद का कहना है कि ऐसा करके उन्होंने दोनों ममालिक की सकाफत को एक लड़ी
कड़ी में परो दिया है और एक तरफ वो क्लिकनी काउंटी काउंसिल की शुक्रगुजार हैं और दूसरी तरफ आईपा HOC पाकिस्तान एम्बेसी, शहजाद नौशरवानी और पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, जहां पर मौजूद पाकिस्तानियों ने उन्हें खूब दाद दी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे ट्रक आर्ट है और पाकिस्तानी ट्रेडिशन ट्रक आर्ट को और आयरिश सिंबलिज्म को मिला के एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो ट्रक आर्ट है उसको मैंने इस कार में पेंट किया और इसको बनाने में मुझे 3 मंथ्स लग गए हैं। और थैंक यू आईपा और डॉक्टर खालिद सरवर और डॉक्टर हारून जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और इसके अलावा साथ साथ मैं यहाँ की एक आर्टिस्ट आमना वलायत का भी नाम लूँगी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। और आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो ट्रक आर्ट है वो पूरे यूरोप में पूरी दुनिया देख रही है कि आर्टिस्ट जो है वो भी पेंट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का जो ट्रक आर्ट है वो जो पेंट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है इससे। इस गाड़ी को जब क्लिकनी कैसल के सामने पार्क किया गया तो लोगों की एक बड़ी तादाद इसे देखने के लिए पहुंच गई और एक तरफ पाकिस्तान के खूबसूरत रंगों और कल्चर की तारीफ सुनने को मिली तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट के काम और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को मिलकर उन्हें खूब दाद भी दी गई। I think it's like a nice way to show like how Pakistan and like Ireland like unite together. Yeah. So I feel like it's a really nice way to show off that you like appreciate Ireland. And coming to Ireland and showing off the car and stuff. We come from Spain. This is the first time that we see this Pakistan car. Beautiful colors. And it's a new culture for us. So we're delighted to have Sobia here. We met through the Visual Arts Ireland and I just absolutely love her car and how she's, I suppose, bringing together Irish and Pakistani culture. I'd also like to thank IPA for the encouragement that they give to artists in Ireland. सालाना कल्चर नाइट में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी आर्ट को नुमाइश के लिए इस अंदाज में पेश किया गया जो पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं। सोबिया साद का कहना है कि वो इस गाड़ी को आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में पाकिस्तानी एम्बेसी में भी शोकेस करना चाहती हैं और उम्मीद है कि आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन और पाकिस्तान एम्बेसी इस बारे में उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि पाकिस्तानी कल्चर और आर्ट को आयरलैंड में पसीराई मिल सके। यहाँ जो मौजूद लोग हैं इस वक्त इस कार के साथ तस्वीर ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का कल्चर कितना खूबसूरत है और क्या पाकिस्तान में इस तरह की जो ट्रक आर्ट है वो क्या वाकई रोड्स पर चलती हैं। सोबिया का ख्याल है कि इस ट्रक आर्ट को, इस कल्चरल कार को पाकिस्तान एम्बेसी और आईपा के ताउन से डबलिन में भी लेके जाया जाए और वहाँ पर भी पाकिस्तान के कल्चर को दिखाया जाए। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, किलकैनी, आयरलैंड। इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से IMO की सदर सलीम अहमद अब्दुल करीम, IMO चेंबर ऑफ कॉमर्स के ज्वाइंट चेयरमैन इम्तियाज़ एमिको के एजाज़ में पुरवकार इशाया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मेमन कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट। दुबई में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानब से शानदार तकरीब सजाई गई। तकरीब का एहतमाम मिडल ईस्ट चैप्टर और तंजीम के बानी मेंबर अब्दुल्ला जानू हसन की जानब से किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सलीम अहमद अब्दुल करीम, बरतानिया से आए इम्तियाज इमिको और समीर आदम थे। तकरीब में इंटरनेशनल मेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंटरनेशनल मेमन बिजनेस काउंसिल के अगराज व मकासद पर तबादला ख्याल किया गया और मुस्तकबिल के हवाले से फलाही मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तकरीब के मेजबान अब्दुल्ला जानू हसन समेत दीगर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तमाम शहरों में मेमन बिजनेस काउंसिल के दफातर खोले जा रहे हैं जो बराह रास्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिपोर्ट करेंगे। आज का जो इवेंट हमने जो रखा है उसका मकसद ये है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब सलीम करीम साहब जो हैं वो मोज़म्बिक से आए हैं, हमारे इम्तियाज़ साहब हैं जो अपने लंदन से आए हैं, ये हमारे अपने इंटरनेशनल मेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जॉइंट चेयरमैन हैं और हमारे समीर आदम हैं, वो हमने अपने जो है वो इधर अपने इनको सिलेक्ट किया है फॉर इंटरनेशनल मेमन बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन के इसके हैसियत से। तो ये एक अपने हमारे प्रेसिडेंट साहब आ रहे थे तो हमको इन लोगों को इंट्रोड्यूस भी करना था और ये क्या है कि हमारा एक नया इनिशिएटिव है कि हमने जो है वो बिज़नेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिज़नेस काउंसिल पहले हर सिटी के अंदर में हर एरिया में IMO की जानिब से अपने बिज़नेस काउंसिल होगी, वो काउंसिल जो है वो सपोर्ट करेगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। काफ़ी अच्छा काम हो रहा है जो अपना अब्दुल्ला भाई कर रहे हैं, सब कमेटी मेंबर कर रहे हैं, इकबाल भाई है, काफ़ी अच्छा है, बहुत खुशी हुई अटेंड करके। इंशाल्लाह देखते आगे कुछ भी हो सकते हैं, हम लोग सब एक मिलके सब साथ में इंशाल्लाह सब कुछ आगे करेंगे। ये जो अभी हमारा जो फॉर्म हो रहा है B2B बिज़नेस का, इंशाल्लाह वो सेट हो जाएगा। काउंसिल एक हम बिल कर दें इंशाल्लाह वो बिज़नेस के लिए, तो जितने भी बिज़नेस हैं मेमन में
وہ سارے B2B کنیکشن ہوئے گی. پینڈیمک کے ٹائم پہ ہمارے یہاں پہ بہت پرابلمز ہوئے ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ، پاکستان، انڈیا، سری لنکا، انڈیا، کینیڈا، امریکہ، ہر جگہ پہ. مگر ہم اگر UAE کو دیکھے جائیں، UAE ہیز بین ماشاء اللہ ٹو گڈ ان کنٹرولنگ دا پینڈیمک. ان کے کیسز بھی کم رہے، اور آئی وڈ سے اسپیشلی آئی وڈ سلوٹ ہز ہائنس شیخ محمد who has been very active getting the things done on the right time. آج ہمارے اس میٹنگ کا یہاں کا مقصد کیا ہے؟ تو ایکچولی میٹنگ کا مقصد ویری سمپل ہے کہ جو ہماری انٹرنیشنل ویمن آرگنائزیشن کا جو بزنس، جو چیمبر آف کامرس کا جو ہمارا پلان تھا لاسٹ 2 ایئر سے، وہ ہم لوگوں نے انٹرنیشنل ویمن آرگنائزیشن کے نام سے جو چیمبر آف کامرس کا جو ہم نے کریشن کرنا تھا وہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. اور ہمارے جو انٹرنیشنل ویمن چیمبر آف کامرس کے جو ڈائریکٹر ہیں اور ان کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں وہ آج یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تقریب میں ویمن کمیونٹی کی اہم شخصیات یاز امین، عمر باخرانی، امتیاز کلوڈی، خالد بیگا والا سمیت بورڈ ممبرز نے بھرپور شرکت کی اور معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا. آخر میں شرکا کی روایتی خانوں سے تواضع کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری ان دنوں جرمنی کے دورے پر ہیں. فرینکفرٹ میں 92 نیوز کے نمائندے اصغر مرزا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا کا اہم ترین مسئلہ افغانستان میں قیام امن ہے. عالمی برادری کو اس حوالے سے آگے آنا چاہیے. پرامن و خود مختار افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے. افغان طالبان نے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے. قاسم سوری نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. جب ہماری حکومت آئی، اس سے پہلے 55% ٹیکس تھا پیٹرول کی مصنوعات پہ. ہم نے، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر پیٹرول اس سے بہت مہنگا ہے. یہاں پہ بھی 200 کچھ روپے کا 1 لیٹر ہے پیٹرول اور ڈیزل. جرمنی کے اندر پاکستانی روپوں میں اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان میں سستا ترین پیٹرول ہے. پاکستان میں ہم نے جو 50% جو ٹیکس تھا اس کو کم کر کے 15% کر دیا ہے. بوجھ اپنے اوپر حکومت نے اٹھا لیا، عوام پہ نہیں دے رہی. تو یہ تو مصنوعات آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو 15 دن کے بعد بڑھاتے ہیں. یہاں پہ تو صبح کا ریٹ کچھ اور ہے، یورپ میں شام کا کچھ اور ہو جاتا ہے پیٹرول کا، اور یہاں پہ کوئی نیوز نہیں بنتی ہے. اس لیے کہ انٹرنیشنلی مارکیٹ کے ساتھ یہ جڑی ہوئی چیز ہے. پاکستان میں نہیں ہوتا، باہر سے آتا ہے. تو آپ کے جرمن میں بھی آپ دیکھیں یہاں پہ 200-250 روپے کا لیٹر ایک پیٹرول ہے آپ کا، ہاں تو 300 روپے کا تقریباً. تو ہمارے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹیکس بھی کم کر دیا، صرف 15% لے رہی. دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ یہ پہلی واحد حکومت ہے جنہوں نے تسلیم کیا ہے ان کے ووٹ کا حق، اور ہم نے کوشش کی. اپوزیشن نہیں چاہتی کہ آپ کو ووٹ کا حق ملے. سر عام آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر بھی ہم نے رائٹ دیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سہولت دے سکیں، ہم وہ سرمایہ لا سکیں پاکستان کے اندر. ہم نے جو ہے وہ انوائرمنٹ پیدا کیا جس کی وجہ سے سب سے زیادہ سرمایہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے جو ابھی اضافہ آیا ہے. جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سرمایہ اوورسیز پاکستانیوں کو خصوصاً جو ہے جو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی میں جو آگے ہیں، جو دوسری چیزوں میں آگے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، جو ایجوکیشن میں، جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں یہاں پہ ہیں، ان کو آنا چاہیے پاکستان جو ہے وہ پورا من جگہ ہے آپ کے سامنے. آپ کے برطانیہ نے جو ہے وہ اپنے ٹورزم کے جو میگزین ہے اس میں بہترین سیاحت کی جگہ قرار دیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں اس گرمیوں کے سیزن میں لوگ آئے ہیں وہاں پر سیر کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کو پاکستان کی بہت فکر ہے. جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں وہ پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں. جو تحریک انصاف نے جو تحریک شروع کی 25 سال سے، اکثر جو ہے اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے مجھے اپنے بہن بھائی ملے، مجھے وہ پاکستانی ملے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سوچ اور فکر سے ان کی سوچ اور فکر ملتی ہے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کرپشن کا نظام ختم ہو، جو امیر اور غریب کا فرق ہے یہ ختم ہو، طبقاتی سسٹم ختم ہو. جو اس طرح ہم نے تعلیم میں ختم کیا، ایک نصاب لے کے آئے. جس طرح ہم نے وہ سراہ رہے ہیں یہاں پہ پاکستانی حکومت کو جنہوں نے ہیلتھ کارڈ ایشو کیا موجودہ حکومت نے. آج پوری دنیا میں کرنٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو تھا وہ 17 سال سے ڈیفیسٹ میں تھا کرنٹ اکاؤنٹ، وہ سرپلس کیا. پھر GDP ریٹ دنیا کا گرا ہوا ہے، آپ نے دیکھا مہنگائی ہر طرف ہو رہی ہے. اس کے باوجود 3.95 GDP ریٹ جو ہے وہ پلس گیا پاکستان کا. نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.